हाँ जी students, in today's class we are going to cover the next exercise. In this exercise we will cover the topic asking people to do things कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮੋਡਾਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਡਾਲਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੋਲਾਈਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੁਡ, ਦੈਨ ਡੂ ਯੂ ਮਾਈਂਡ, ਵੁੱਡ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨ, ਕੁਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੂ ਯੂ ਮਾਈਂਡ, ਵੁੱਡ ਯੂ ਮਾਈਂਡ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨ ਦੀ। ਫॉर एग्जांपल, कैन यू मीट आवर कस्टमर at the airport। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨ ਯੂ ਮੀਟ ਅ ਕਸਟਮਰ ਐਟ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੋਲਾਈਟ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੋਲਾਈਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਟੂ ਡੂ ਥਿੰਗਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲਾਈਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਕੈਨ ਯੂ ਮੀਟ ਅਰ ਕਸਟਮਰ ਐਟ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੁਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਡ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਾਈਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਕੈਨ ਤੇ ਕੁਡ ਦਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਬਟ ਕੈਨ ਤੇ ਕੁਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਡ ਦੀ। ਕੁਡ ਯੂ lend me 2 lakh rupees। could you lend me 2 lakh rupees, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ could। ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੈਨ ਕੁਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੂ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਵੁੱਡ ਯੂ ਮਾਈਂਡ, ਤਾਂ ਡੂ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਵੁੱਡ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੋਲਾਈਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕੈਨ ਕੁਡ ਐਂਡ ਡੂ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਵੁੱਡ ਯੂ ਮਾਈਂਡ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨ ਕੁਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੂ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਔਰ ਵੁੱਡ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਨ ਐਂਡ ਕੁਡ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਕੈਨ ਐਂਡ ਕੁਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਕੈਨ ਐਂਡ ਕੁਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਮੋਸਟਲੀ ਯੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੈਨ ਕੁਡ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨ ਐਂਡ ਕੁਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਅਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯੂ ਮੀਟ ਅਰ ਕਸਟਮਰ ਐਟ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਐਂਡ ਡੂ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਵੁੱਡ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਲੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੂ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਸਮ ਟੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਵੁੱਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੁੱਡ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਸਮ ਟੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲਅਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਡੂ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੁੱਡ ਯੂ ਮਾਈਂਡ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੂ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ
you like to, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ to ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, would you like to, would you like to, ਤਾਂ to ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ to ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ always verb ਦੀ first form. Would you like to, for example, would you like to arrange a meeting, कि तुसी मीटिंग अरेंज कर सकते हो, मीटिंग अरेंज करना पसंद करोगे, ठीक है, मीटिंग अरेंज कर सकते हो। तो टू वुड यू लाइक टू आपां कित्थे यूज करना, जिथे आपां नूं वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दित्ती आ, एंड डू यू माइंड आपां कित्थे यूज करना, जिथे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल आईएनजी दित्ती आ, एंड कैन कुड आपां कित्थे यूज करना, जिथे आपां नूं सिंपली जिहड़ा सब्जैक्ट दे नाल अपना सेंटेंस स्टार्ट हो रहा उत्थे आपां यूज करांगे कैन और कुड। तो ये जिन्ने भी अपने कुड यू वुड यू वाले हैगे ने, ठीक है, कैन कुड डू यू माइंड वुड यू माइंड, तो इन्हां दे लास्ट दे उपर हमेशा की लग रहा हुंदा है, क्वेश्चन मार्क लगता है, बिकॉज वी आर आस्किंग पीपल टू डू थिंग्स, आपां नूं नहीं पता तो अगला आपां नूं देगा या नहीं। तो देखो अगला मना भी कर सकता है, कुड यू लैंड मी 2 लाख रुपीज, तो अगला कह सकता है सॉरी आई डोंट हैव 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो अगले से डिपेंड करता है कि अगला डैनी करता है अपनी रिक्वेस्ट नूं या फिर एक्सेप्ट करता है। इस तो बाद आप गल करते हैं इंपैरेटिव्स की, कि इंपैरेटिव्स कित्थे यूज होंदे ने, तो समटाइम्स आपां किसी परसन नूं डायरैक्टली कह दिंदे आ कि ये काम कर दो, ठीक है, जिस तरह आप कह सकते हैं ब्रिंग द चेयर, मेक द टी, एक ही हो गए इंपैरेटिव्स। जो आप किसी परसन देखो इंपैरेटिव्स होंगे ने, जो आप किसी परसन को कमांड करते हैं, जो रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो वो होंगे ने इंपैरेटिव्स। तो देखो इंपैरेटिव्स दे विच की है कि आप डायरैक्टली कह रहे हैं कि ब्रिंग द चेयर, आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, जदों आप सिंपल कह रहे हैं कि ये काम कर दो, तो इदां दे सेंटेंस आप कित्थे यूज करते हैं। अगर आप नैगेटिव की गल करते हैं तो ऑलवेज आप की लावांगे अगे डोंट ब्रिंग द चेयर, कि चेयर ना लैके आओ। तो अगर आप गल करिए कि इदां दे इंपैरेटिव सेंटेंस आप कित्थे यूज करते हैं, ये सेंटेंस आप यूज करते हैं इनफॉर्मल, इनफॉर्मल सिचुएशन दे विच अपने फ्रेंड सर्कल दे विच, अपनी फैमिली दे विच आपां इदां दे सेंटेंस यूज करते हैं। अगर आपां फॉर्मल मीटिंग दे विच तां आपां इह नहीं यूज कर सकते, तो उदों आपां की यूज करते हैं could you inform me about this, कि तुसी मैनूं इहदे बारे इन्फॉर्म कर सकते हो। तो जदों भी आपां फॉर्मल तरीके दे विच गल करते हैं तो उत्थे आपां की यूज करते हैं कुड यूज करते हैं, कुड यू इन्फॉर्म मी अबाउट दिस मीटिंग प्लीज, ये अपने होंगे ने फॉर्मल। जो आप किसी परसन को कोई गल कह रहे हैं उदों आप यूज करते हैं। आफ्टर दैट इन्होंने क्या होया कि इवन पीपल इन अथॉरिटी ऑफन अवॉइड यूजिंग द इंपैरेटिव टू गिव ऑर्डर्स, कि देखो समटाइम्स की होंदा है कि जिहड़ा परसन अथॉरिटी दे विच है, ठीक है, जिस तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होंदी है तो उहदे विच भी की होंदा है कि अपने इस तरह एक हायरार्की बनी होंदी है कि सब तो अपर परसन होंदा है, इस तो लो पोस्ट ते उस तो लो पोस्ट ते उस तो लो पोस्ट ते। तो अगर ये परसन चाहे तो ये इन्हां नूं ऑर्डर दे सकता है, बट वो ऑर्डर दिंदा है, बट वो जिहड़ी आपां इंपैरेटिव फॉर्म की गल कर रहे सी कि ब्रिंग द चेयर, तो वो ऐदा इंपैरेटिव सेंटेंस दे विच कदे भी ऑर्डर नहीं दिंदा, बिकॉज वो एक फॉर्मल वे दे विच अपने तो जिहड़े मतलब लोअर ब्रांच दे परसन होंदे ने उन्हां नूं फॉर्मल लैवल मतलब फॉर्मल वे दे विच की करदा हो उन्हां नूं ऑर्डर दिंदा है। जिस तरह किहड़े-किहड़े फ्रेज यूज कीते जांदे ने, आई वॉन्ट यू, यू मस्ट, कुड यू आप पहला ही कर लिया। तो मैं एग्जाम्पल
की है you must wait। तो सिंपल वो ये नहीं कहते कि wait please, वो कहते ने कि you must wait until you see the green light। कि जिन्ना टाइम तुसी ग्रीन लाइट नहीं देखते उन्ना टाइम तुसी वेट करो, तुहानू वेट करनी पेगी। मतलब ये ऑर्डर है तो बट एक फॉर्मल वे दे विच ऑर्डर किया गया है। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट यू जिहड़ा फ्रेज हैगा वो भी यूज किया जाता है। आफ्टर दैट ये सीगा कि आस्किंग पीपल टू डू थिंग्स, कि जदों आपां किसी नूं कोई काम करने लई कह रहे हैं। इस तो बाद उन्होंने अपन एक पॉइंट दिता होया आस्किंग फॉर थिंग्स, कि जदों आपां किसी परसन तो कोई चीज़ मंग रहे हैं, वो तो कोई काम करने लई कह रहे सी, इत्थे आपां गल करांगे आस्किंग फॉर थिंग्स। तो देखो जदों भी आपां किसी परसन तो किसी कोई चीज़ मंगनी है तो आपां की यूज़ करते हैं कैन या फिर कुड। तो जिहड़ा कुड होएगा वो ज़्यादा पोलाइट होएगा। इत्थे आपां कदे भी इंपैरेटिव हैगे ने जिहड़े सेंटेंस वो यूज़ नहीं करांगे। जिस तरह कैन आई हैव अ पेपर प्लीज, तो लास्ट ते आपां यूज़ की करते हैं प्लीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि आपां चीज़ मंग रहे हैं किसी परसन तो कोई। कैन आई हैव अ पेपर प्लीज, could I have a receipt please। तो ये अपनियां की हो गई, जदों आपां किसी परसन तो कोई चीज़ मंग रहे हैं तो उदों आपां यूज़ करते हैं कैन एंड कुड का यूज़ करते हैं। तो आपां ये नहीं कहांगे कि गिव मी अ पेपर और गिव मी अ रिसिप्ट। तो आपां कदे भी जदों कोई चीज़ मंगनी है तो उत्थे आपां कदे भी इंपैरेटिव्स ने जिहड़े वो यूज़ नहीं करांगे। तो आपां उत्थे कैन ते कुड दा यूज़ करांगे। व्हेन वी आस्क फॉर समथिंग इन शॉप और कैफे वी कैन सिंपली नेम व्हाट वी वांट, व्हाट वी मस्ट से प्लीज। तो जदों भी आपां कैफे दे विच जाने या किसी ऐसी शॉप से जाने जिथे आप कोई ऑर्डर कर रहे हैं कोई चीज़, तो उन्होंने कहा कि जदों आप इदां दी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उदों आप सिंपली कह सकते हैं, अपन पूछा जाता है कि व्हाट यू वांट, आप कह सकते हैं 2 कप कॉफ़ी प्लीज। बट उन्होंने कहा कि जदों भी आप कोई चीज़ पूछनी है तो आप पिछे की लगाना है, प्लीज़ जरूर लगाना है। या फिर आप ये कह सकते हैं आई वुड लाइक और I will like coffee please। I would like or I will like coffee। सॉरी 2 कप कॉफी प्लीज। तो ये अपना हो गया कि जो आप किसी शॉप या फिर कैफे वगैरह से जाने आप कह सकते हैं। अदरवाइज आप ये फ्रेज भी यूज कर सकते हैं आई वुड लाइक कॉफी और आई विल हैव कॉफी। तो विल हैव दे नाल आपां प्लीज नहीं लगाते, बट जो आई वुड लाइक होएगा उहदे लास्ट ते आपां की लगावांगे प्लीज। ओके, सो दिस इज आवर एक्सरसाइज आस्किंग पीपल टू डू थिंग्स एंड आस्किंग फॉर थिंग्स। तो इहदे नाल ही अपनी जिहड़ी एक्सरसाइज हैगी आ ये कंप्लीट हो चुकी है।